So this is the last second module that we will be covering. The last one will be Kiwi, which helps us to deploy apps. Okay, Windows based or Android based. So that will be the last module that we will be covering. This is the second last. This involves dealing with images. Okay, so let me. Okay, so we've already seen this segment in which we were trying to load or show the image. So we were this was the part where we were actually trying to access or trying to read the data. Okay, so how we do that was like we were first of all we were importing the OpenCV module. Okay, when we download that, we write pip install OpenCV hyphen Python. Okay, so we after we have installed the OpenCV module, we import that module using this command import CV2. Okay, now to read the data, what we do is we use the function imread, that stands for image read, imread. Okay, followed by the file name in parentheses. So what we have done here is we have used this imread function that reads the image. Okay, this is the file name, and because this function is under CV2 module, so we have written here cv2.imread. Okay, then once the image was read, it was then stored in this variable img. Okay, now what we did was in the next line we were trying to show what that image was. We were trying to display that data in a different form. Okay, that different form is that image जिसमें हमने read किया था, that was an image format. It got converted into some other format. I'll display that again. And finally, what we are doing in this third line is we are trying to show the data in image format. Okay. So in the second statement, what we are doing is we are reading the image and converting into a certain data format. And in the third line, what we are doing is we are converting the data which is stored in IMG, and we are displaying it as an image. Okay, so there is a concern, sir. In the last session of Matplotlib, आपने कहा था that basic functions बताएंगे. Matplotlib के. Okay, so we'll cover. What we'll do is like जब KV करेंगे, so KV में I'll try to like demonstrate how to develop an app, and I'll integrate plotting. Like हाँ, तो एक जो सेशन रखेंगे लास्ट का उसमें केवी के साथ मैटप्लॉटलिब के भी कुछ फंक्शंस डाल देंगे, सो दैट ऐप विल बी कंसर्न्ड विद प्लॉटिंग ऑफ सर्टेन फंक्शंस. सो विल ट्राई टू डेवलप दैट. तो उसमें आपका मैटप्लॉटलिब भी कवर हो जाएगा एंड केवी भी कवर हो जाएगा. या मैटप्लॉटलिब की जगह वी कैन यूज प्लॉटली आल्सो व्हिच गिव्स बेटर ग्राफ्स. ओके, सो सेकेंड लाइन अगेन, सेकेंड लाइन से हमने क्या किया, इमेज को रीड करवाया एंड वी कन्वर्टेड इनटू अ सर्टेन डेटा टाइप. इन द थर्ड लाइन वी कन्वर्टेड दैट डेटा टाइप एंड वी वर शोइंग दैट इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज. देन हमने वेट किया बिकॉज वो क्या करेगा, एक बार शो करके बंद कर देगा, तो विंडो जो आपकी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और हमने विंडो क्लोज भी नहीं है, उसमें एक विंडो आ जाएगी, इमेज शो करके वो बंद हो चुकी है एंड दैट इज इन इररिस्पॉन्सिव. So what we will do is we will write the statement wait key. You have to know that wait key may it's the camel style writing has been followed. K is capital. Okay, so wait cv2 dot wait key and parenthesis के अंदर we mention the time. So when we don't mention anything, it goes into an infinite loop and it waits until, like, it keeps on waiting until any key is pressed. Okay, so when certain key is pressed, it will do something, and after, like, this is what this is an infinite wait until a key is pressed. ठीक है, and once this key is pressed,
This moves on to the second line, and which says destroy all windows. So all the windows that are open will be destroyed or killed. ठीक है, let's try to execute this section now. uh, I'll share the entire screen. Just a second. Okay, so we have executed, and see, we see an asterisk here. Asterisks represent that something is being processed. ठीक है. So let me go on to this new window that was open. The title of this window is color image, and we see here, if we see here, we have also like mentioned the window name as color image. Okay, so the asterisk represents that something is being processed, or the program is still running, or there is a pause that is being taken. ठीक है. So that pause or that asterisk is because this cv2 dot wait key 0 जो हमने यहाँ पे किया, so which is an infinite wait. So I'll go on to this window, and I'll press a certain key, any key basically on your keyboard, and you will see that the window is destroyed. ठीक है. So you have to follow these things. What if we don't use this wait key? Let's try to do that. तो आपने देखा होगा एक, आई डोंट नो इफ दैट वाज विजिबल, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए यू मस्ट हैव नोटिस कि आपको देखो थर्ड लाइन की वजह से इमेज शो हुई, एंड फाइनल क्या हुआ, वो बंद हो गई है. ठीक है. तो यहाँ पे आप चाहें तो वेट की ना यूज करते हुए आप टाइम का डिले भी लगा सकते हैं. ठीक है, आप इंपोर्ट टाइम कर लीजिए एंड यू एड अ डिले. बट लेट्स ट्राई टू यूज दैट. एंड इसमें भी वी कैन स्पेसिफाई अ सर्टेन टाइम एज वेल. लेट्स से 100. Let's see what happens. So 100 milliseconds के लिए हो गया. Let's try for 2000 and see what happens. 1, 2, and the window closed. ठीक है. तो आप चाहें तो you can specify the time for which you want the window to be open. I hope you don't have any doubt so far. Okay. So once that image is read, so it's there in this img variable. So if what if we want to write a certain image or save it into a certain file format, so we use the function imwrite. Okay, just like we use the function imread, here we are using the function imwrite. Okay, so let's take a different name, different underscore name. Okay, तो ये नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा सेम फोल्डर में. सो आई हैव डन दैट. सो डिफरेंट नेम, डिफरेंट अंडरस्कोर नेम डॉट जेपीजी के नाम से मैं img वेरिएबल को सेव कर रहा हूँ. सो इट विल ऑटोमेटिकली राइट as an image because the extension is .jpg. So let's execute that. Okay, so this returns us a value which is true. So that means the writing process is completed. So whenever the writing process is completed, it gives us a boolean which is true. Now let's see if this is actually true or not. Let's try to read that file again. So if the file is available, okay, uh, let's call it image check. Okay, let's call this as check, and this as well as check. Okay, so what we are doing here, and let's make this infinite, so until I press any key. So check is equal to, so we are trying to read this new file that we have created just now, which was again the original file, but we have saved it to the with a different file name. Okay, so we have that file name here, and we are also using a different variable name check and check. Okay, so let's execute this, and we see here, see image check नाम है इसका, इस window का, and this image has been opened. Okay, let me press any key and the window gets destroyed. Okay, so this was done. Now again, analyzing what the data is, or how OpenCV tries to store the data, the image data. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन. सर एक क्वेश्चन था, अगर हम फाइल के नेम को जेपीजी में रीड करवाते हैं तो राइट में उसको पीएनजी में कुछ चेंज होता है, फोटो में कंप्रेशन करता होगा. जेपीजी कंप्रेस्ड होती है, पीएनजी भी कंप्रेस्ड होती है, बट पीएनजी में जो कंप्रेशन होता है वो लॉस लेस होता है. जेपीजी में जो कंप्रेशन होता है वो लॉसी होता है.
Okay, so the pure image in a pure format is a bitmap image, जिसमें आपको हर पिक्सल की प्रॉपर वैल्यू होती है. ठीक है, हर पिक्सल की प्रॉपर वैल्यू होती है. सो लेट्स ट्राई टू, okay, like because when we if because we are on that topic, so I'll discuss that more. So let's imagine you have you have an image which is say mm, 1920 टाइम्स 1080. ठीक है, तो इस डायमेंशन की आपके पास इमेज है. ठीक है, ये कॉमन वॉलपेपर्स जो आप अगर डाउनलोड करेंगे तो वो इसी डायमेंशन की आती है. ठीक है, नाउ दिस इज द डायमेंशन, दैट मीन्स इसकी हाइट और विड्थ ये होगी. इसका मतलब इसके जो पिक्सल्स होंगे वो ये होंगे 1920 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स. इसमें कोई डाउट नहीं होगा. आई सपोज इतने पिक्सल्स हैं, एंड फॉर एवरी पिक्सल, सॉरी, फॉर एवरी पिक्सल देयर इज 3 numbers दैट रिप्रेजेंट्स इट्स वैल्यू. बताया था आपको, एक रेड चैनल अगर आपका आरजीबी इमेज है, सो लेट्स अज्यूम दैट द इमेज इज आरजीबी इन आरजीबी फॉर्मेट. तो आपका आर का चैनल का डेटा, बी के चैनल का डेटा और जी के चैनल का डेटा होगा. सो फॉर एवरी पिक्सल यू हैव 3 types of information. One gives you red information, one red channel information, the other gives you blue channel information, and the other gives you green channel information. ठीक है, उसके बाद the every this channel has how many, like the data is saved in a 8-bit format, क्योंकि 255 तक वैल्यू जाती है. So it has 8 bits. ठीक है, 8 बिट्स हो गई है. तो लाइक 8 बिट फॉर एवरी चैनल, एंड ऐसे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर दीज मेनी पिक्सल्स. सो लेट्स ट्राई टू रन दिस. सो आपका ये हो गया, ये देखिए, ये फाइल साइज हो गया. दिस इज द फाइल साइज. तो 8 बिट्स फॉर 3 चैनल्स फॉर इतने पिक्सल्स. लेट्स ट्राई टू डिवाइड इट बाय 1 2 3 4 5 6. तो आपकी 49 MB की, सोचिए, मैं आई हैव डिवाइडेड दिस बाय 1 मेगा या 10⁶. तो दिस इज योर फाइल साइज. तो अगर आपके पास 1920 × 1080 डायमेंशन की अगर आपके पास एक इमेज है, एंड वो बिटमैप फॉर्म में है, दैट मीन्स हर पिक्सल की कोई वैल्यू हो रही है, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है. ठीक है, तो दैट विल हैव अ वैल्यू ऑफ दिस फाइल साइज विल बी 49.7664 MB, विच इज ह्यूज. बट आप देखते हैं कि आप जो डाउनलोड करेंगे कुछ केबीज के भी हो जाते हैं, राइट. सो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन टेक्निक होती है. ओके सर, 3 नंबर रिप्रेजेंट 3 नंबर रिप्रेजेंट RGB. यस, द नंबर 3 रिप्रेजेंट्स कि एक पिक्सल के लिए कितने चैनल ऑफ डेटा. जैसे अगर आप इसमें जैसे ही नीचे ही देखिए, सो इमेज जो हमने ऊपर लोड करवाई है उसमें 500 × 500 हाइट और विड्थ पे एक पिक्सल होगा. तो वो देखो पिक्सल की, अच्छा इमेज का साइज आई हैव टू चेक. ओके, एनीवे इसको यहाँ देखते हैं. लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस इमेज वेरिएबल. तो द इमेज का डेटा टाइप इज अ numpy array, और जो इसका डायमेंशन है, इमेज का साइज है, दिस इज द हाइट 400 पिक्सल्स, दिस इज द विड्थ 640 पिक्सल्स, एंड दिस इज द नंबर ऑफ वैल्यूज जो हर पिक्सल होल्ड कर रहा है. तो इट इज होल्डिंग 3 वैल्यूज. लेट्स चेक दैट. सो वील एडिट दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज 500 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेज की हाइट ही 500 नहीं है. सो लेट्स, और इसमें देखो इन्फॉर्मेशन नीचे बता भी थी. इंडेक्स जो है 500 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एक्सिस 0. एक्सिस 0 मतलब फर्स्ट डायमेंशन, विद साइज 400. तो इसने बताया कि देखो भाई, आपका जो साइज है इमेज का, या हाइट जो इमेज है, या जिस एक्सिस को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस एक्सिस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, दैट इज 400 in size, but you have put value 500. So let's change that. Instead of 400 500, let's take it 200. ठीक है, तो 400 पे ये वैल्यू है 0,0,0. Okay, let's change that. Let's make it 100. So that's a different value. तो जो हमें ये जो हमें अभी वैल्यू मिल रही थी, that represents 0,0,0. 0,0,0 का मतलब क्या हो गया? The image is like, it does not have a red channel, it does not have a yellow not sorry, blue channel, and it does not have a green channel. मतलब कोई चैनल का कलर ही नहीं है इसमें. That means इस पिक्सल पे जो वैल्यू होगी that should be black. ठीक है, let's try to change the pixel position. Let's say 100,100 पे, like टॉप लेफ्ट से 100 और टॉप राइट से 100.
टॉप लेफ्ट से मतलब 100 दोनों डायरेक्शन में जो जाएगा, ठीक है। तो इट हैज सर्टेन वैल्यू, तो ये कुछ लाइट कलर है बिकॉज इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ओरिजिनल इमेज बहुत बड़ी होगी साइज में, उस पर कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन जो आप इमेजेस के फॉर्मेट देखते हैं, जेपीजी, पीएनजी, दीज आर ऑल कॉम्प्रेस्ड इमेजेस, ठीक है। द कॉम्प्रेस्ड इमेजेस कैन आइदर बी लॉसी और लॉसलेस, ठीक है। मे बी वी कैन हैव अ लाइक इन डेप्थ सेशन ऑफ दिस दीज थिंग्स, बट अभी के लिए आई गेस इतना काफी है। सो इमेज वेरिएबल जिस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है वो हमने देखा। इट्स सी द फर्स्ट लाइन व्हाट इट डज इज इट इज प्रिंटिंग द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल img इमेज जो हमने फोटो अपलोड करवाई थी, इसमें सेव करवाई थी, ठीक है। सो इट गिव्स अस इट्स अ क्लास numpy का एरे, ठीक है। तो इट्स numpy एरे एंड द शेप, एक और चीज देख लेते हैं, साइज। द शेप ऑफ द इमेज is 400 by 300 400 by 640 by 3, that means it has a height of 400, width of 640, and जो इसमें कलर्स हैं वो 3 चैनल के हैं, ठीक है। लेट्स आल्सो प्रिंट द इमेज साइज है, दिस इज 768,000, दैट मींस इतने these many pixels are present in the image, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू कन्वर्टिंग द इमेज इन ग्रे स्केल, ठीक है ना, कन्वर्टिंग द इमेज इन ग्रे स्केल। ओके, सो हाउ टू डू दैट अगेन, इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज को हमने रीड कर लिया है। लेट मी रीड द इमेज फ्रेंड्स वाली, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रेंड्स, इसको हमने इमेज को रीड करा लिया। कॉमेंट इट आउट, read the image that we want to convert into grayscale. After that, what we will do is these keywords are to be remembered. या आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन में अगेन मिल जाएंगे, ठीक है। So what this function does is, this function again is available under cv2, that's why we have written cv2.cvt color. cvt आपको पता है convert का short है, and color you know. So convert color, अब किस इमेज या किस वैल्यू को या किस वेरिएबल में जो इमेज आपने स्टोर कराई है उसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द वेरिएबल नेम जिसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। और लेट्स डू वन थिंग, वी हैव ऑलरेडी लोडेड द इमेज, ऊपर जो हमने है, ऊपर ऑलरेडी हम यहाँ पे कहाँ गया, इसको हम रीड करा चुके हैं फ्रेंड्स की इमेज को, एंड द वेरिएबल नेम इज img. सो लेट्स कंटिन्यू वर्किंग विद दैट grayscale image, yeah. So let's so what we will do, यहाँ पे लिखेंगे img, जिस फाइल को हम कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, कलर कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, एंड द कलर वैल्यू। सो दिस सेज कि cv2 डॉट कलर color अंडरस्कोर bgr2 ग्रे। so this is important, bgr2 ग्रे। तो bgr मतलब वही कलर इमेज है आपकी, ब्लू चैनल, ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल, एंड यू आर कन्वर्टिंग टू व्हाट, ग्रे चैनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, अगेन इसको लेट्स रिमूव दिस राइट नाउ, एज ऑफ नाउ। तो आई एम शो कराया है हमने, द लेट्स कीप द वैल्यू एज ग्रे स्केल, लाइक टाइटल एज ग्रे स्केल, एंड इसको भी नेम चेंज कर देते हैं, चलो जी इमेज, जी अंडरस्कोर इमेज, ठीक है, वैसे जी अंडरस्कोर img, ठीक है। अगेन उसके फॉलोड बाय द टू जो लाइंस जो आनी ही चाहिए, cv2 डॉट वेट की, then cv2 dot destroy all windows. Let's run this and see what happens. So the image is now in grayscale. You have converted your image into grayscale, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय grayscale, पहले ये बताइए, कौन बताएगा। आपने लाइक फोटोग्राफी की होगी, फिल्टर्स विल्टर्स यूज किए होंगे, तो देयर इज वन, द इमेज इज इन शेड्स ऑफ ग्रे, ट्रू। तो अच्छा, इसकी पिक जैसे, लेट्स दिस वाज द ओरिजिनल इमेज, दिस वाज द ओरिजिनल इमेज, ठीक है। उसका हमें पिक्सल की वैल्यू पता चली, ये थी, ठीक है। लेट्स ट्राई टू एनालाइज, okay, so we have to close this window first. Let's close this window. Let me add a new cell. Let me access a particular pixel of my grayscale image. So let that be same 100, 100, ठीक है। ऊपर भी मैंने 100, 100 कराया था, ग्रे स्केल का भी 100, 100 को एक्सेस कर रहा हूँ मैं, ओके।
So you see the difference. This was the original image. ये जो ऊपर है, this was the original colored image, and this is what, this is the grayscale image. So can you like see the outputs in the two cases? मैंने दोनों केस में एक particular position, again I'll repeat, एक particular position की वैल्यू को मैंने, पिक्सल की वैल्यू को मैंने वो कराया है, प्रिंट करवाया है या रिटर्न करवाया है, ठीक है. सो वो पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू जो कलर्ड इमेज में आई थी, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, ठीक है. डेटा टाइप आप देखेंगे तो इट इज यू इंट 8, दैट मीन्स अनसाइंड इंटीजर ऑफ साइज 8 बिट, ठीक है. एंड द वैल्यू वाज 232,207,191. When we did the same thing for the grayscale image, what we observed was we got only a single number, which was 205. Although हमें समझ में आ रहा है, this is again in that 8-bit format, it is unsigned integer and it is an 8-bit format, but the value was only a single number, which is 205. Can anyone try to explain this? Like, what's the reason behind it? Or can you like make a guess? एक जनरल गेस कर सकते हैं आप, like why is it in this fashion? Because if you can understand why the value is in such fashion, you will actually like truly understand what a grayscale image is actually. You can unmute your mic and tell the answers, or maybe give a wild guess. अमन, अमन का शायद माइक खराब है. Please repeat the question. Okay. So the question is, I want to ask you, like, I want to ask you what you understand by a grayscale image. ओके. तो ग्रे स्केल इमेज को समझने के लिए आई डिड अ फेवर फॉर यू. मैंने यहाँ पे क्या किया, ये IMG जो ये वाली 14th वाला इनपुट वाला ये जो सेगमेंट है, उसमें आई डिड समथिंग. एंड जो मैंने किया, मैंने 100, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से नीचे 100 और राइट 100 में जो पिक्सल था, एक सिंगल पिक्सल था, उसको मैंने प्रिंट करवाया, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, एंड आई गॉट द वैल्यू एज एन एरे, ठीक है. एंड द वैल्यू दैट इट हेल्ड वाज 232,207,191. सो ये समझ में आ रहा है कि तीन चैनल जो होते हैं कलर्स के, RGB वाला जो होता है, उसकी हमें तीन वैल्यूज मिल गई हैं. नाउ व्हाट आई डिड वाज, इन दिस सेगमेंट, ये 16th वाला सेगमेंट है, उसमें आई कन्वर्टेड द इमेज जो IMG में थी, उस वैल्यू को मैंने कन्वर्ट करके कन्वर्टेड इनटू अ ग्रे स्केल इमेज. I converted into a grayscale image. Then what I did was, मैंने same pixel की value देखी of that grayscale image. So this value 205 if is of that 100, 100 वाला pixel in a grayscale image, and this value is for a colored image. अब आपसे क्वेश्चन है कि एक तो ये वैल्यू ऐसी क्यों आई, और अगर आप ये बता देंगे ऐसी क्यों आई, तो आपको समझ में, मतलब समझ में आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअली अ ग्रे स्केल इमेज इज. बताइए. Looks like the average of looks like average of RGB. Does it? So let's try to do that. Okay. So okay, let's copy this. Let's, ये एक array दे रहा है, so that means इसको हम sum भी कर सकते हैं, ठीक है. sum कर दिया, let's see sum आ रहा है, and let's average करना है तो divided by 3. So that's 210, and the value is that the value that we are getting is 205. ग्रे स्केल इमेज में कलर 1 to 5 में लाइक करते हैं. नो, दैट्स नॉट द केस, अमन. प्रेम, जो आपने एवरेज किया है, अगर दैट्स अ थिंग दैट वी कैन डू, इट इज ऑलमोस्ट एन एवरेज, बट पीछे बैकएंड पे कोई डिफरेंट एल्गोरिदम लग रही है. सो यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर. Converts, the grayscale converts
complete pixel to gray, convert 3D to 2D array. Yes, Yashi, you are correct. तो ग्रे स्केल बेसिकली यही करता है, इट कन्वर्ट्स द 3D, लाइक जो अब जैसे इंफॉर्मेशन थी, एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन थी, व्हाट एन इमेज इज, 2 डायमेंशनल एरे ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, अगर इमेज देखें तो पिक्चर क्या होती है, 2D, एक तो 2D सरफेस पर होती है पिक्चर जो होती है, ठीक है, एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज जो एंटिटी होती है जो बनाती है उस इमेज को, दैट इज अ पिक्सल। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरे ऑफ पिक्सल्स को हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, अब जो कलर्ड इमेज है उसमें एक जो पर्टिकुलर पिक्सल है, इट गिव्स यू 3 इंफॉर्मेशन की, रेड की वैल्यू क्या, ब्लू की वैल्यू क्या, ग्रीन की वैल्यू क्या। ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज होल्डिंग, जो ऊपर की जो वैल्यू थी, इट वाज गिविंग अस 3 इंफॉर्मेशन, 232, 207 एंड 191, गिविंग द 3 चैनल वैल्यूज। ग्रे स्केल बेसिकली क्या होता है, उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर गोज। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर गोज, और होता क्या है, it is only giving us a particular information, which is, let me tell you, grayscale gives us the information of intensity या लाइट इंटेंसिटी या ब्राइटनेस लेवल कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ग्रे स्केल इमेज बेसिकली क्या होता है कि लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ठीक है, लाइट और डार्क का ही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो बेसिकली क्या बता रहा है वो, पिक्सल की इंटेंसिटी बता रहा है कितनी है, पिक्सल की ब्राइटनेस बता रहा है वो कितनी है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू दीस सिंगल वैल्यूज। सो दिस इंटेंसिटी विल लाई फ्रॉम 0 टू 255। अगेन बिकॉज 8 बिट यूज हो रहे हैं, तो 0 टू 255। 0 मीन्स उसमें बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी नहीं है मीन्स द पिक्सल इज ब्लैक, या 255 यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है लाइट की, दैट मीन्स द पिक्सल लुक्स लाइक व्हाइट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो बेसिकली जो पिक्सल की जो वैल्यू है, पिक्सल की जो वैल्यू है वो 3 डायमेंशन से हटके या 3 वैल्यू से हटके वो 2 वैल्यू सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज इंटेंसिटी। इसमें कलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो हम कलर की बात ही नहीं कर रहे हैं ग्रे स्केल में, कलर ग्रे स्केल में कलर जा चुका है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, सो वन वे ऑफ गेटिंग दिस लाइट इंटेंसिटी, यस इट इज दिस थिंग, क्या कहते हैं, एवरेज कर सकते हैं, बट देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट फंक्शन। आप चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक व्हाट एल्गोरिदम दे यूज टू कन्वर्ट अ कलर्ड इमेज टू अ ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, ओके, सो दिस वी वर ट्राइंग yesterday also, but yesterday it did not work. तो यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे हमने क्या किया, लेट मी कॉमेंट आउट दिस, or let me just cut it and bring it to a cell below. Okay, so again, like we have accessed this information, ये np dot zeros, what it does is it creates, अच्छा यहाँ पे जो अभी मैंने बताया, किसी को डाउट तो नहीं है? प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट, ग्रे स्केल इमेज क्या होती है उसमें? Any doubt in grayscale image or how to convert it to grayscale? Okay, so Yashi says she's clear. अच्छा यशी, अब आप बताइए कि क्या कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फिर क्या होती है, लाइक हाउ डू यू डिफाइन और हाउ डू वी क्रिएट अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज? So by the time you reply Prem, तो आई रिपीट दिस अगेन, तो 205 इसलिए आया बिकॉज जो बैकएंड पेज के ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए जो एल्गोरिदम इन्होंने यूज करी है, दैट मैनिपुलेट्स द डेटा ऑफ रेड चैनल, ब्लू चैनल एंड ग्रीन चैनल। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि द लाइक अ वे टू प्रोड्यूस दैट थिंग, लाइक वन थिंग दैट वी कुड हैव डन वाज ट्राई टू मेक एन एवरेज, लाइक ट्राई टू गेट एन एवरेज ऑफ द वैल्यूज, जो हमारा 210 आया था। ठीक है, बट मे बी द ग्रे स्केल जो इमेज बनकर आती है वो इतनी बेटर नहीं होगी जितनी बेटर इस एल्गोरिदम से आ रही है। सो यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट एल्गोरिदम दे यूज टू कन्वर्ट कलर्ड इमेज टू ग्रे स्केल इमेज।
बट हो वही रहा है that we are manipulating the pixel values, जो original pixel values थी red channel, blue channel और green channel की, there is something going on behind that converts and gives the value of the intensity. ठीक है, एवरेज कैन बी टेकन, बट आप ट्राई कर सकते हैं इसको एवरेज लेके, यू कैन ट्राई लाइक मॉडिफाई द वैल्यूज एंड रिप्लेस द वैल्यूज विच आर देयर इन एरे टू इट्स एवरेज. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका डायमेंशन है वो 3 से 2 हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का डायमेंशन. जो 3 वैल्यूज थी वो 2 वैल्यूज में, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड व्हाट विल गेट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का डेटा. ठीक है, डोंट नो सर, आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस. There's okay, so there's a big difference between grayscale image and black and white image. So as the name represents, black and white. Black, again मैंने आपको बताया था, black means there is absence of light. That means there is no channel or no intensity. That means the value is zero. ठीक है. And what white represents कि it is maximum. अगर intensity की बात करें तो it is maximum. It will give you a value of 255, and even if it's in a colored image, it will give you a value of 255, 255, 255. Okay, so black and white image has only two pixel values, two distinct pixel values, which is either a 0 or a 255. ठीक है, I'll repeat this again. जो इमेज होगी, so image again it's a collection of two dimensional collection of what pixels. तो उसमें आप कोई भी पिक्सल उठा लीजिए उस इमेज में, अगर उस पिक्सल में केवल दो ही वैल्यूज आपको मिलती हैं, रैंडमली कोई भी उठा लो या सारे पिक्सल एक एक करके उठाओ, you will only get either of the two values. And what are these two values? 0 और 255, black और white. ठीक है, you get this? तो ग्रे स्केल, सी अगेन ग्रे स्केल, स्केल ऑफ ग्रे. ठीक है, तो ग्रे का स्केल कहां से कहां तक गया, व्हाइट से लेके ब्लैक तक गया. इट इज अ कंटिन्यूअस स्केल, और कंटिन्यूअस नहीं कहूंगा, इट इज एन इंटरमीडिएंट स्केल, जो 0 से लेके 255 तक जाती है, एक स्टेप करके, लाइक एक एक स्टेप करके, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन टिल 255. ठीक है, सो इट्स अ स्केल which is intermittent, like not continuous. And black and white में क्या, it is either a black or a white. So there's a vast difference between black and white image and a grayscale image. Grayscale image में आपको grays भी मिलेंगे, like between complete black and complete white आपको और भी colors मिलते हैं, but in black and white image you only get two colors, two distinct colors, black and white. You got that? Okay, so let's move forward. Yeah. तो वीवर हेयर, हमने यहाँ पे क्या किया, CV2 को वापस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. लेट्स, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. ठीक है, तो इंपोर्ट कराया पहले numpy बिकॉज वी हैड टू यूज दिस फंक्शन np.zeros which creates an array of a particular dimension in which all the values are 0. So let's try to print this, print arr. तो हमने अभी 300 बाय 300 का हमने एक एरे क्रिएट किया है, एंड हर 300 बाय 300 में जो जितनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इट विल हैव 3 वैल्यूज, और वो 3 वैल्यूज हमने क्या कर दी हैं, सारी 0 कर दी हैं, बिकॉज इट इज np.zeros. ओके, अब मैंने, जस्ट अ सेकंड. ओके, या,
सो हमने एक एरे क्रिएट कर ली थी विच वाज ऑफ 300 बाय 300 क्योंकि हम चाहते थे कि हम एक स्क्वायर इमेज बनाए जिसमें पिक्सल का जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी 300 क्रॉस 300, 300 हाइट के 300 विड्थ के. बट लेट मी चेंज दैट ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाइट क्या है विड्थ क्या है. सो लेट्स मेक इट 100 बाय 300 और लेट्स मेक इट लार्जर. 200 बाय 400 का बना लेते हैं. अगेन डायमेंशंस 200 बाय 400 बाय 300 है. 3 वैल्यूज हर एक पिक्सल के लिए. ठीक है. वंस दिस इज डन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट्स ट्राई टू नॉट प्रिंट इट नाउ. तो ये हमने डेटा भी प्रिंट कराया बट हमारा ऑब्जेक्टिव बिकॉज वी आर डीलिंग विद इमेजेस, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम डेटा को प्रिंट कराएं बट डेटा को शो कराएं एज एन इमेज. ठीक है. सो व्हाट विल डू इज cv2.im शो. ठीक है. हम शो कराना चाहते हैं उस डेटा को बाय अ फाइल नेम, लेट्स से क्रिएटेड इमेज, कॉमा लगा के द वेरिएबल जिसको हम शो कराना चाहते हैं. सो इट्स ARR इन दिस केस. ओके, सो आई मिस समथिंग. I missed two important lines. cv2 dot key ky small and cv2 dot destroy all windows. Okay, so I'll close this image. It will take time. So this is something what happens when you don't write wait key or destroy all windows wali lines. Okay, so the kernel will now restart again. That's an issue. Let's wait for it to restart. Okay, it restarted. Let's try if it's running. Or let's restart it manually. So make sure you write these two lines, wait key and destroy all windows. Okay, so it's ready now. Let's okay, we don't need the previous lines. So let's run this. हमने again क्या किया, numpy create करा. I have to import now cv2 as well. Import cv2. Yeah. So I'm running this window now. Where is, yeah. So this is the image that is now created. See the window title is created image. This is the image that we have created. Okay. तो एक completely black हमें screen दिख रही है क्योंकि हमने zeros की array बनाई है. All the values are 0. Let's try to close this and let's multiply it with 255 and let's see what happens. Nothing happens. Anyway, why did not, why did, just a second. Copy. ये क्या हुआ? It's still processing. Kernel clear output. Okay, so let me also print what ARR is. Okay, so it's not doing that. Okay, so that's not the right way to do. Or let's clear output again. I'm sorry. So that was what we have created this far. Now what we're doing here is we're trying to change or manipulate the values that are there in this array that we have created. ठीक है. तो अभी क्या है यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे तो ARR की हर जो कोई भी वैल्यू ले लो, 0 पे ले लो, 0,0 पे ले लो. So here is not defined. You have to define that first.
हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ। Okay, so this is created. I'll close this. Now let me try to access this pixel. So it's 0 comma 0 comma 0. Okay. So what we have to do now is like we can replace this value. We can change this value as well. Like let me do this. So इसमें देखते हैं like this is AR 0 comma 0 comma 0. I can make let me make this say 255. ठीक है. Now let's try to print ARR 0 comma 0. तो यहाँ आपने देखा कि आपने वो पिक्सल की वैल्यू चेंज कर दी है, देखा आपने. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द पिक्सल वैल्यूज. या अगर मैं करूँ एक काम करता हूँ मैं, आई रिप्लेस द कंप्लीट पिक्सल ARR जो मेरा 0 कॉमा 0 है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ से 255 से. एंड लेट मी ट्राई टू प्रिंट ARR 0 कॉमा 0. तो वो देखो 255 हो गया है वो. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी एंड लाइक इन होल भी आप चेंज कर सकते हैं. सो आई हैव टू गो नाउ. आई स्टॉप द सेशन हियर. ठीक है. आप एक काम करिएगा. लेट मी ट्राई टू शो दैट जो पहले कोड लिखा हुआ था. या तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, आई चेंज द वैल्यूज हियर. रेंज क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं जे की रेंज करते हैं 0 से लेकर 200 तक, और इसकी करते हैं हम 400 तक. एंड ट्राई टू रन दिस एंड शो दिस. तो यहाँ पे मैंने ये कुछ बना हुआ है. सो ऑल द वैल्यूज आर ब्लैक एक्सेप्ट फॉर दिस ब्लॉक. ठीक है. सो तो मैंने क्या किया है, अगर आई की वैल्यू, अगर रो की वैल्यू 100 से 200 के बीच में है और कॉलम की वैल्यू 100 से 200 के बीच में है, तो क्या करा मैंने, सारी वैल्यूज को उसके फर्स्ट चैनल को और सेकंड चैनल को मैंने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है. So this is what we have done. Try to experiment this. I'll mail you this notebook file and आप ट्राई करिएगा इसको एंड प्ले अराउंड विद इट. और मेरे ख्याल से बाकी नीचे जो सारी चीज़ें हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेबल हैं. इसमें अगर डाउट्स होंगे तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, और लेटर ऑन वी कैन हैव अनदर सेशन ऑन दिस. बट इन नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद किवी, so that you start to build apps. और जो भी आप काम करें, लाइक if you pursue any project जो आप पाइथन में बना रहे हैं, आप उसका एटलीस्ट एक यूजफुल आउटपुट निकाल पाए और एक ऐप की तरह वो कोई और उसको यूज कर पाए. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद किवी नाउ. लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक दिस ओपन सीवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. इसमें और भी चीजें आती हैं, बट लाइक मैनिपुलेटिंग वीडियोस है, देन यूर आपको अगर फेस आइडेंटिफाई करना है किसी का. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स comes under OpenCV. Like these are the foundation. This is like where the foundation lie for all the image processing and those kind of things. सर ऐप डेवलपमेंट लर्न करने के लिए भी कुछ सेशंस. यस, वही बता रहा था कि नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन किवी, जिसमें हम एक बेसिक ऐप कैसे डेवलप करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. वी विल स्टडी दैट. So we'll end the session here. I'll mail you this Jupyter notebook right away, and you can play with it. And yeah, that will be all. So I'll end the session now. You can ask your questions via mail. Okay, bye.